جسے لوگ خدا کہیں اسے علی کہتے ہیں، اور جسے علی علی کہے اسے عباس کہتے ہیں۔ مصاحب نہیں، میں نے 2 جملے پڑھنے ہیں صحیح عباس کے، بسم اللہ، کیونکہ جس دن سرکار عباس کے نام کے ساتھ منسوب ہو مجلس، میں اس دن مولا عباس کے سیرت کے 2 جملے ضرور پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ، اگر آپ اجازت دیں اور ذہنی طور پہ آمادہ ہوں تو میں آپ کو مولا عباس کا سفین کا حملہ سنانا چاہتا ہوں۔ کون عباس؟ بسم اللہ، جو لفظوں سے پیار کرتے ہو، ذرا جملے سنو۔ ذوالفقار کے قبضے پہ جبری ہوئی انگلیوں کا اختیار، صبر حسن اور حسین کا انکار، مبعوث سے حقیقت کی مزین میں عبادت، زین العابدین کی عبادت، الراسخون فی العلم سرکار باقر کا علم، مسند صدق و صداقت میں بیٹھے جعفر صادق کی صدق و صداقت، باب الحوائج کے اندر کھلنے والے در موسیٰ کاظم کی عطا، راضی بالقدر والقضاء سرکار رضا کی رضا، کائنات کے متقیوں کے تقوی کی سند سرکار تقی کا کرم، حقیقت الویہ اور حقیقت محمدیہ کے خوبصورت امتزاج سرکار نقی کا کرم، حقیقت توحید کو سینے میں چھپائے ہوئے عسکری کی ہیبت، پردہ انوار کو اپنے چہرے پہ لٹائے ہوئے بارنے کی غیبت، یہ ساری چیزیں جب ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے گھر کے اندر چلے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا عباس کی زندگی پہ سب سے معتبر کتاب لکھی ہے صوفی عبدالرزاق مکرم نے، بسم اللہ، ایران سے چھپی ہے، اردو ترجمہ ہو کے مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ عبدالرزاق المکرم کی کتاب، عبدالرزاق الموسوی المکرم، اس نے کتاب لکھی ہے زندگانی حضرت عباس، اس میں خوبصورت معرفت کا موتی دیا ہے انہوں نے۔ آپ نے یہ حدیث سینکڑوں مرتبہ سنی ہے، نبی نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، بسم اللہ، آخر بھی محمد، سارے محمد۔ عبدالرزاق مکرم نے امام ششم سے منقول کر کے روایت لکھی کہ امام کے پاس ایک شخص نے آ کے سوال کیا، سہل اس کا نام تھا، اس نے کہا مولا پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، سارے محمد، مولا اوسط کیا ہے؟ بسم اللہ، اوسط کہتے ہیں وسط کو، وسط کہتے ہیں نصف کو۔ عربی زبان میں اگر آپ اس کا ترجمہ پوچھیں تو آپ بچے اس بات کی گواہی نہیں دے سکیں گے، ان کے ذہن میں نہیں، لیکن بزرگ دیں گے۔ ہمارے ایک ترازو ہوتا تھا، اس ترازو کو ایک لکڑی کے ہینڈل کے ساتھ پکڑا جاتا تھا جو 2 پلڑوں کو برابر رکھتا تھا، اس لکڑی کے ہینڈل کو اوسط کہتے ہیں۔ جو 2 پلڑوں کو برابر رکھے اسے اوسط کہتے ہیں۔ سائل نے پوچھا مولا اگر 12 میں اوسط ڈھونڈے، 6 ادھر چلے گئے، 6 ادھر چلے گئے، اوسط کہاں؟ اگر 14 میں ڈھونڈے، 7 ادھر چلے گئے، 7 ادھر چلے گئے، اوسط کہاں ہے؟ مولا فرمایا اوسط ہے میرا عباس۔ جب کلنا محمد ہے تو پھر اکبر بھی محمد ہے، اصغر بھی محمد ہے، عباس بھی۔ ماشاء اللہ نبی نے ایک سطر لکھی ہے مولا عباس میں، بسم اللہ، اس نے کہا کہ کون عباس جس کی نیام میں سوئی ہوئی تلوار، بسم اللہ، جس کی نیام میں سوئی ہوئی تلوار، عرب کے بڑے بڑے بہادروں کی آنکھوں سے سونے کی طاقت چھین لے اسے عباس کہتے ہیں۔ جنگ صفین میں 1.5 لاکھ علی کے سامنے آ گیا۔ علی نے ایک نظر سفیانی لشکر کو دیکھا، ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا۔ علی نے مسکرا کے کہا میں نے جنگ شروع کر دی ہے، اب ذہنی طور پہ آمادہ رہنا، جیسے جنگ سنی جاتی ہے ویسے اپنے ذہنوں کو بلند کرنا جنگ سننے کے لیے۔ علی نے ایک نظر سفیانی لشکر کو دیکھا، ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھ کے کہا
आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा, आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। अली का इतना कहना था, 7 कदम हसन आगे बढ़ा, 5 कदम हुसैन आगे बढ़ा। अली ने बेटों के अमामों पे बोसा देके कहा, बेटा मैंने ये कहा है, मेरा कौन सा बेटा, मेरा कौन सा बेटा, तुम तो मुबाहले वाले दिल से मोहम्मद के बेटे हो। इतना कहना था, हसनैन कदम हटा रहे थे, या औन इब्ने अली आगे बढ़ा। औन ने पढ़ के कहा, बाबा फिर मुझे इजाजत दे। फरमाया, औन अगर तुझे मैदान में भेजो, 1.5 लाख दुश्मन सामने है, मुझे बता 1.5 लाख कत्ल करने के लिए क्या चाहिए। उस वक्त औन ने कहा, बाबा घोड़ा भी तेरा होगा, तलवार भी तेरी होगी, जीन में भी तू बिठाएगा, 3000 का लश्कर दे दे, 1.5 लाख के सामने चला जाऊंगा। फरमाया, घोड़ा भी अपना देता हूँ, तलवार भी अपनी देता हूँ, 3000 का लश्कर भी देता हूँ, मुझे बता 1.5 लाख कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए। जवान सर उठाना। और इब्ने अली ने मुस्कुरा के कहा, बाबा फजर की नमाज तू पढ़ा चुका, मगरिब की नमाज पढ़ा के तू मुसल्ला छोड़ेगा नहीं, मैं 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदम ना चूमूं, मुझे अली का लाल ना कहना। अली ने बेटे के बाजू में बोसा दे के कहा, ना और मगरिब को देर है, अली को जल्दी है, मगरिब को देर है, अली को जल्दी है। इतना कहना था कि जाफर इब्ने अली आगे बढ़ा। फरमाया, बाबा फिर मुझे इजाजत दे। फरमाया, 1.5 लाख का लश्कर है, तुझे क्या चाहिए। उसने कहा, मुझे 1500 का लश्कर दे दे, घोड़ा भी अपना दे दे, तलवार भी अपनी दे दे। अली फरमाया, घोड़ा भी अपना देता हो, तलवार भी अपनी देता हो, 1500 सिपाही भी देता हो, बता 1.5 लाख कत्ल करने के लिए वक्त कितना दरकार है। फरमाया, बाबा फजर की नमाज तू पढ़ा चुका, ज़ोहरैन की नमाज पढ़ा के तू तस्बीह मुसल्ले पे रखेगा नहीं, मैं 1.5 लाख कत्ल करके तेरे हाथों में बोसा न दूं, मुझे अली का बेटा ना कहना। अली ने बेटे की आंखों में बोसा दे के कहा, जाफर ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है, ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। अली के बेटे कदम हटा रहे थे, अब्बास कदम बढ़ा रहे थे। अब्बास अली के सामने आके खड़ा हो गया। फरमाया, अब्बास तुझे क्या चाहिए। अब्बास ने अली के कदमों पे हाथ रखा, हाथ रखेगा, मौला फिर मेरे सुन, ना मुझे लश्कर चाहिए, ना तेरा घोड़ा चाहिए, ना तेरी तलवार चाहिए, ना लश्कर चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना तलवार चाहिए। फरमाया, चाहिए क्या। फरमाया, इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो, तू घोड़े की सीट में बैठा। फरमाया, 1.5 लाख कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए। अब्बास ने अली के हाथों में बोसा दे के कहा, अपने हाथों के साथ घोड़े की सीट में बैठा, मैं 1.5 लाख के सामने जाऊंगा, मैं पहली सब पे हमला करूंगा, पहले मुनकर की गर्दन पे तलवार फेरूंगा, कल मैं लश्कर को चीरता हुआ आखिरी सब में चला जाऊंगा, तेरे पहले मुनकर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले आखिरी का सर ना उड़ाओ, मुझे अब्बास ना गया। पैरोकार पे लाना, हर दौर के जजीद और जजीद के पैरोकार पे लाना। पहले की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले, जो करीब बैठो साथ देना, आखिरी का सर ना उड़ाओ, मुझे अली का लाल ना कहना। इजाजत है मैं थोड़ा तखय्युल कुछ सजदे अकीदत के करना चाह रहा हूं। मौला अली अब्बास को लेकर खैमे में चले गए। जो अली जली था खफी हो गया। अब जो उर्दू लफ्जों से प्यार करते हैं, थोड़ी देर के बाद खैमे का पर्दा उठा, कायनात की निगाहों ने पहली बार अली के साथ खड़ा अली देखा। अली का अमामा अली के सर पे, अली की आवा अली की दोष पे, अली ने अली को सवार करवाया। रहले ज़ीन पे वफा का कुरान आया। अब्बास का घोड़े की ज़ीन पे आना था। अली के नौकरों ने अब्बास का घोड़े का हल्का बांधा, हल्का बांध के कहा, या अली आज तेरा बेटा पहली बार मैदान में जा रहा है, मौला बता तेरा बाप जंग कैसे करेगा, तेरा गाजी तेरा शागिर्द है। मौला अली ने कहा, अब्बास जंग कैसे करेगा। अब्बास ने बाबे की तरफ देख के कहा, बाबा इजाजत दे, नौकर तेरे सुन रहे हैं, 1.5 लाख भी सुन रहा है, बाबा मुझे इजाजत दे। अब्बास आंख से लड़े, जुबान से लड़े या हाथ से लड़े, जो जंग सुनने के लिए थोड़ा बोले तो आंख से लड़ूं, जुबान से लड़ूं या हाथ से लड़ूं। अली का नौकर
परेशान हुए, मौला ये क्या? जंग हाथ से होती है, तलवार से होती है, नेज़े से होती है, तीर कमान से होती है, आग से जंग कैसे होती है? मैंने मुस्कुरा कहा अब्बास बता मेरे नौकरों को आग से कैसे लड़ेगा? अब्बास घोड़े के ज़ीन में खड़ा हो गया। अब्बास ने घोड़े के ज़ीन को गदीर का मिंबर बनाया, खड़े होके बाबा के सामने देखेंगे लगा, बाबा के नौकरों जाओ, मैं अब्बास तुम्हें जंग का तरीका बता रहा हूँ, मैं 1.5 लाख के सामने जाऊंगा, तलवार खींचूंगा नहीं, नेज़ा फेंकूंगा नहीं, तीर छोड़ूंगा नहीं, 1.5 लाख के सामने जाके सिर्फ इन्हें देखो और ये मर जाए। सिर्फ देखो, ये अल्लाह की आंख की ताब न लाए और मर जाए। और आंखें भी बंद रखूं, मुट्ठियां भी बंद रखूं। 1.5 लाख के सामने अब जुमले में मैंने मेहनत नहीं करनी, मैंने देखना है कि तुम सिर्फ तौर पे कितने माता हो। अब्बास ने कहा ना मैंने आंखें खोलनी है, ना मैंने हाथ खोलने हैं। 1.5 लाख के सामने जाके आंखें भी बंद होगी, मुट्ठियां भी बंद होगी, सिर्फ इन्हें इतना कहूं मर जाओ। इनके नापाक जिस्मों से गलीज रूहें निकाल के इनके बदन मेरे कदमों पे ढेर कर दे। अली ने कहा ना अब्बास, अगर तू आंख से लड़ा, जुबान से लड़ा, तारीख कहेगी अली का बेटा मोजे से लड़ता, हाथ से लड़ा। अब्बास ने चेहरे पे नकाब लिया। अब्बास मैदान में पहुंचे। 1.5 लाख में से एक कुरैब नामी शख्स निकला, अब्बास के सामने आया, हमला पड़ने लगा। जितने गाजी के नौकर बैठे हो, जिनके घरों पे सरकार अब्बास के अलम की शबी है, जो मौला अब्बास के अलम को चूमते हो, कुरैब नामी शख्स मौला अब्बास के सामने आया। उसने अब्बास मौला के सामने, क्योंकि बचपन जो था सखी का, इसने अब्बास के सामने कहा अली ने तुझे भेजा है। अब उसे नहीं पता था ये अली का बेटा है। उसने कहा अली ने तुझे भेजा है, तू तो अभी छोटा है, गर्दन कटवाऊंगा जुमला तारीख में आओ। सखी अब्बास का इतना खूबसूरत जुमला है, मेरा दिल करता है कि मैं वसीयत करके मरूं कि मेरे कफन पे अब्बास का जुमला लिखा। इतना जुमले से प्यार है मुझे अपने मौला अब्बास के। जब उसने कहा कि तुझे भेजा है, तू तो अभी छोटा है, अब्बास ने घोड़े के सीन में बैठ के जाहिल तुझे नहीं पता अल्लाह कुरान में काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। कोई आम नहीं बोल रहा, नहजुल बलागा का बेटा बोल रहा। कुरान में काफिर कहता है उसे जो हमें छोटा समझे। हमारे घर में कोई छोटा नहीं होता, हम सारे अली हैं। अब जिसे अली का तर्जुमा पता है वो बोलेगा मेरे से, हम सारे अली हैं। अच्छा तू अली है, तारुफ करवा अपना। अब्बास से कहा पहले तू तारुफ करवा। अरब का कानून था, जंग का तरीका था, मैदान जंग में जाकर तारुफ करवाया जाता था। नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, कबीला कौन सा है। अरब के लोग पहले तारुफ पूछते थे, फिर तलवार उठाते थे, क्योंकि वो समझते थे कि हमारे कबीले के बराबर है तो जंग करें, कबीले से जंग कम है तो हमारे जंग ही नहीं कर रहे। अरब में कानून था कि जंग करने से पहले अपना और अपने बाप का नाम बताया जाता था। लोग जंग से नहीं डरते थे। मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है। तो भले बाजार में शख्सियत को ताना नहीं दे दिया था कि नबी को कत्ल बाद में करना, बहन मुसलमान हो गई है, ये ताना ही था। ये तो तरीक़ इस्लाम में लिखा है, शिया किताब का हवाला नहीं। सुन्नी भाइयों की किताब में लिखा कि वो घर गए, दरवाजे पे गए, बहन कुरान पढ़ रही थी, दरवाजे पे खड़े होकर कुरान सुना, दिल मोम हो गया। 23 साल नबी कुरान पढ़ते रहे, दिल मोम नहीं हुआ।
जो बहन की तलावत सुन के कलमा पढ़े वो और हैं। अब्बास ने अपना तारुफ करवा, उसने अरबी में शेर पढ़ा, मैं तर्जुमा पढ़ने लगा। उसे तारुफ करवाया, उसने कहा मैं वो हूँ, लश्करों की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती, मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। अरब की माएं अपने बच्चों को मेरा नाम लेके डरा के सुलाती हैं। तारुफ उसने इतना गजब ना करवाया कि अब्बास का दिल दहल जाएगा, अब्बास डर जाएगा, सही काम जाएगा। उसने कहा लश्करों की दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। अरब की माएं अपने बच्चों को मेरा नाम लेकर डरा के सुलाती हैं। बदे मेरे हाथ है, कल की आखिरी रात है, मातमियों कोशिश करना इस जुमले में मेरे हम सफर बनना, जुमले में तन्हा ना छोड़ना। इसने इतना बड़ा तारुफ करवा के सखी अब्बास को देखा कि इतने बड़े तारुफ के बाद अब अब्बास अपना तारुफ क्या करवाएगा। मौला अब्बास ने घोड़े की सीट पे बैठ के एक दफा से सर से लेके पांव तक देखा, पांव तक सरसरी निगाह मारने के बाद हज़रत अब्बास ने मुस्कुराकर तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, मैं मलकाए ततहीर की दुआ हूं, ऐसे नाम तुझ जैसे गलीजों को नहीं बताया। मैं मलकाए ततहीर की दुआ। अब आपसे कहा जा तू भी सुन ले और अपने 1.5 लाख को भी बता दे। मेरा सिर्फ इतना तारुफ है कि मैं अली का बेटा हूं। अली का बेटा कहना था 1.5 लाख के जिस्म थर थर का। आज अली का शबाब आ गया, अली की जवानी आ गई, अली का वो खैबर वाला हाथ आ गया। कुरैब ना वापस जा सकता था, ना आगे बढ़ सकता था, सामने खड़ा था सखी अब्बास। इसने कहा अब्बास पहले हमला कर। अब्बास ने कहा पहले तू कर। उसने कहा मैं बाद में करूंगा। अब्बास ने मुस्कुरा कर तू बचेगा तो करेगा। सीरत है अली और अली के बेटों की। जिंदगी में कभी दुश्मन पे पहले हमला नहीं किया, कभी दुश्मन पे पहले वार नहीं। और जब ये कर देते थे ये दूसरा नहीं करते थे, दूसरा वो करता है जिसका पहला खता होगा, और मासूम में खता नहीं होती। अब्बास ने कहा हमला कर। मौला अब्बास घोड़े की जीन से जमीन पे आए, किताबें लिखती है नौजवान सर उठाना। कुरैब ने जिस्म को चक्कर लगाया, एक गोल चक्कर लगा के उसने अपने बदन का पूरा लहू अपने बाजू पे लिया, बाजू पे लेके उसने जुल्फकार को अपनी तलवार को खींचा, खींच के उसने उल्टे कदमों के साथ अब्बास के सर पे हमला किया। जब इसने अब्बास के सर पे हमला किया, तारीख कहते हैं मौला अब्बास ने धीरे से अपनी तलवार को निकाला, निकाल के अब्बास ने अपनी तलवार से इसकी तलवार को रोका। तलवार के साथ तलवार का रुकना था। अब्बास ने इसको अपनी आंखों से देखा, अब्बास की आंखें इसको अपने लोहे के खौल से निकल के दिमाग की रगों में सनसनाती हुई महसूस हुई। कुरैब से अपना ही हाथ उठाया नहीं जा रहा था, इससे अपना ही हाथ का बोझ नहीं उठाया जा रहा था। इसके जिस्म से जान निकलनी शुरू हो गई। इसका सिर्फ हाथ में जान थी और इसका बदन लागर हो गया, बदन बेजान हो गया। अब्बास ने तलवार को पीछे किया, इसकी तलवार वहीं खड़ी थी, इसकी तलवार वहीं रुकी थी। अब्बास ने अपनी कलाई को घुमाया, कलाई को घुमा के कुरैब की गर्दन को चीरती हुई तलवार अब्बास की निगाह में वापस आई। अब्बास ने घोड़ा वापस किया, ये अली के लश्कर से सामान दौड़ के आगे बढ़ा, आगे बढ़ के जाके अब्बास के निगाह से तलवार कहती, तलवार को निकाल के कभी दाएं से देखा, कभी बाएं से देखा, कभी ऊपर से देखा, कभी नीचे से देखा। अब्बास ने कहा सलमान क्या देख रहा है? फरमाया अभी ये कत्ल करके आई है, इसमें लहू की लकीर कोई नहीं, इसमें खून का थप्पा कोई नहीं। फरमाया चाचा सलमान तुझे इतनी भी मार्फत नहीं, जो कत्ल हुआ वो निजस था, इसके कब्जे पे ततहीर क्या जो कत्ल हुआ वो इसके कब्जे में ततहीर का। अब्बास वापस आए, अली ने सीने से लगा के कहा अब्बास तेरी आखिरी जंग थी। जिंदा रहा, लड़ा नहीं। बाबुल हवाइज क्यों है? हाजते क्यों पूरी करता है? एक शख्स ने चौथे इमाम से पूछा था आप सारे ही बाबुल हवाइज हैं, लकब अब्बास के पास क्यों है? फरमाया अब्बास जल्दी हाजतें इसलिए पूरी करता है, इसकी करबला में अपनी हसरतें पूरी नहीं। साहिल ने कहा मौला कौन सी हसरत थी? फरमाया मेरे चचा अब्बास की 2 हसरतें थी,
پہلی حسرت تھی کہ قیام تک پانی پہنچ جائے، دوسری حسرت تھی زینب کی چادر بچ جائے۔ میں پڑھنے لگا ہوں سخی عباس کی شہادت، گزارش کروں گا بے نیازی نہ کرنا۔ آنسو تیرے اختیار میں نہیں، ہائے کہنا تیرے اختیار میں۔ آنسو نہ آ سکے ہائے ضرور کہنا۔ کل کی آخری رات ہے غریبوں کی، کل لٹ جائے گا جنگل میں بطول کا صحن، اجڑ جائیں گی جنگل میں علی کی بیٹیاں۔ مولا عباس اتنے احسان صداب پہ۔ مولا عباس مدینے میں جب جناب سید الساجدین واپس آئے تو روز اپنے گھر میں مجلس کرواتے تھے۔ مولا سجاد مجلس کروا رہے تھے، مجلس پڑھنے والے نے روضہ خان مرثیہ میں جناب عباس کا نام لیا۔ حسین کا زخمی بیٹا زخمی ہتھیلیاں زمین پہ لگا کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے جناب سجاد نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھا، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس کہہ کے مولا سجاد پھر بیٹھے۔ اس نے پھر جناب عباس کا نام لیا، مولا پھر کھڑے ہوئے۔ چوتھی دفعہ جب وہ جناب عباس کا نام لینے لگا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اگر آپ کہیں تو میں بار بار نام نہ لوں، آپ کو اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ مولا نے فرمایا تو قیامت تک نام لیتا رہے، میں قیامت تک اٹھ کے سلام کرتا رہوں گا۔ میرے چچا عباس کا ہم سیدوں پہ بڑا احسان ہے۔ اس نے کہا مولا کون سا احسان ہے؟ فرمایا یہ احسان تھوڑا ہے، جب تک زندہ رہا زینب مطمئن رہی۔ رو کے ہر خیمے سے آئی بیوی سے کہتی تھی نا پرواہ کرو چادروں کی، میرا عباس میرا غازی سلامت ہے۔ مان کتنے تھے سیدوں کو عباس پہ، ایک جھلک بتاؤں۔ جب یہ کربلا کا قافلہ لٹ کے واپس مدینے آیا تھا، بشیر ابن جزلم نے مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کیا یا اہل المدینہ قد قتل الحسین، او مدینے والا حسین مارا گیا۔ بشیر اعلان بھی کرتا جا رہا تھا، روتا بھی جا رہا تھا، اعلان بھی کرتا جا رہا تھا، روتا بھی جا رہا تھا۔ ایک دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا، پردے کے اندر سے آواز آئی بشیر کون مارا گیا؟ بشیر دیکھ رہا بی بی حسین مارا گیا۔ رو کے کہتی کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر دیکھ رہا بی بی حسین ابن علی مارا گیا، حسین ابن زہرا مارا گیا۔ اس گھر کا پردہ اٹھا، سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں لپٹی ایک مستور جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں اس کے عصا تھا۔ اس نے بشیر کے گھوڑے کی لجام کو پکڑ لیا، پکڑ کے دی حیا کر میرے دروازے کے آگے نہ کہہ کہ میرا حسین مارا گیا۔ بشیر دے رہا بی بی من نمتے تو کون ہے؟ رو کے دی پردہ کر میں علموں والے عباس کی ماں ہوں۔ عباس کی ماں کا نام آنا تھا، اللہ جانے تو روئے گا نہ روئے۔ بشیر نے گھوڑے کی زین چھوڑی، دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھ کے کہا بی بی تجھے تیرے عباس کا پرسہ ہو، رو کہتی مجھے بتا میرے عباس کو مارنے والی فوج کتنی تھی؟ بشیر کا بی بی 9 لاکھ نے تیرا غازی گھوڑے سے گرایا۔ رو کہتی میں نہیں مانتی، 9 لاکھ سے غازی نہیں گرتا، مجھے بتا میرا عباس گھوڑے سے گرا کیسے؟ بشیر کہتا بی بی تیرے عباس کے ماتھے پہ گرد لگا۔ رو کہتی میرا عباس جنگوں کے طریقے جانتا تھا، جب اس کے ماتھے پہ گرد لگا اس نے ہاتھ سے گرد روکا کیوں نہیں؟ بشیر رو کہتا ہاتھ ہوتے تو روکتا، تیرے تو غازی کے ہاتھ ہی نہیں تھے۔ رو کے کہتی اب میں مان گئی، حسین بھی مارا گیا، زینب بھی قید ہو۔ اگر عباس مارا گیا پھر سارے مارے گئے، اگر عباس مارا گیا پھر زینب قید ہو گئی۔ 10 محرم جب جناب عباس اپنے خیمے میں گئے، جناب فضل کی ماں بی بی لبابہ رو کے کہتی ہے سخی عباس 7 دفعہ آئی ہے حسین کی بیٹی نے، ہائے ضرور کہنا، کوشش کرنا کوئی ایسا ماحول بنانا جناب عباس کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکے، پرسے میں سرکار کے عالم کی شبیہ کی برآمدگی ہو۔ مولا 7 دفعہ آئی ہے حسین کی بیٹی نے، مولا ہر دفعہ آتی رہی میں قرآن پڑھتی رہی، 7ویں دفعہ آئی ہے میں قرآن پڑھتی رہی، چپ کر کے کھڑی رہی ہے۔ جب تھک گئی کبھی دایاں قدم اٹھاتی کبھی بایاں قدم اٹھاتی، رو کے کہتی فضل کی ماں قرآن جتنا مرضی پڑھ میرا اصغر چند لمحوں کا مہمان۔ جناب عباس نے جناب سکینہ کا ہاتھ تھاما، رو کے کہا حسین کی بیٹی باپ سے اجازت لے کے دے۔ مولا حسین کے پاس جناب سکینہ ایک کربلا کے ٹیلے میں بیٹھا تھا، کربلا کا غریب۔ جناب سکینہ آگے بابے کے زانوں میں بیٹھی، بابے کی داڑھی چوم کے کہتی بابا میرے چچا کو جا کر دے، فرات سے پانی لے کے آئے۔ اب جملہ سننا، مولا حسین نے رو کے کہا سکینہ پانی کس کو پلانا ہے؟ بابا اپنے اصغر کو۔ غریب کربلا نے کہا سکینہ اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ بابا میرا بھائی لگتا ہے۔ سکینہ عباس میرا کیا لگتا ہے؟ بابا تیرا بھائی لگتا ہے۔
सकीना तेरे असगर की उम्र कितनी है? बाबा 6 माह। सकीना मेरे अब्बास की उम्र कितनी है? बाबा 32 साल। मौला हुसैन ने बेटी का माथा चूमने का फैसला तूने करना, ऐसे ना हो ना तेरा 6 माह का बचे ना मेरा 32 साल। बीबी सकीना ने कहा चचा अब्बास आ मैं तुझे मुश्कीज़ा पहनाऊं। और सैयदो गैर सैयदो मौला अब्बास 32 साल का जवान, सकीना 4 साल की। सैयदादी के सामने अब्बास झुकते 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 इतना झुक गए अब्बास के दोनों हाथ सकीना के कदमों पे आ गए। करबला से हुसैन से पीला छूट गया। रो के कहा अब्बास तूने सैयदादी का हया किया है, अब्बास तूने मेरी बेटी का एहतराम किया है। मैं हुसैन वादा करता हूँ क़यामत तक तेरा हाथ बुलंद रहे, अब्बास तेरा हाथ अलमों पे बुलंद रहे। गुरबत के 2 जुमले सुनना। मौला हुसैन ने अब्बास का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के करबला के टीले पे चले गए। टीले के पीछे जाके मौला हुसैन जमीन पे बैठ गए। रोकेगा अब्बास आज है 10 मुहर्रम, थोड़ी देर बाद असर अशूर हो जाए। अब्बास एक एक करके सारे चले गए। अब्बास अब तू भी जा रहा। अब्बास मुझे एक सवाल का जवाब दे और चला जा। अब्बास ने रो के कहा मुझे मैं डर रहा हूँ कि मैं जुमला पढ़ूं और कोई मोमन बेनियाजी करे और कहीं सैयदा नाराज ना हो जाए। अगर जुमला वसूल करना है तो फिर हाय जरूर कह देना। मौला हुसैन ने रो के कहा अब्बास एक सवाल का जवाब दे दे। अब्बास ने रो के कहा मौला हुक्म कर, तू वक़्त की हुज्जत है, वक़्त का इमाम है, मुझसे सवाल कौन सा? मौला हुसैन रो के कहा अब्बास तू मैदान में जा रहा है, मुझे सिर्फ इतना बता मैं बहने लेके कहाँ जाऊँ, मैं बेटियां लेके कहाँ जाऊँ? अब्बास तेरे आसरे पे बहने लेके मदीने से आया था, अब्बास जंगल में मेरी ज़ैनब अकेली। अब्बास ने बेटियां लेके कहा मौला हुसैन फिर मुझे मौत की इजाजत देने से पहले जंग की इजाजत है। तेरे आंखों के सामने मैं दरियाए फुरात का पहला न तोड़ूं। फरमाया नहीं गाजी, जंग नहीं करनी। जंग करनी होती मैं सकीना साथ ना लाता, जंग करनी होती मैं ज़ैनब साथ ना लाता। अब्बास सिर्फ तुझे इजाजत है फुरात से पानी लाने की, इसलिए कि दुनिया ये न समझे कि हुसैन के लश्कर के पास पानी का इख्तियार नहीं था। अब्बास पानी का इख्तियार ले, इख्तियार लेने के बाद बेइख्तियार हो जाना, पानी का इख्तियार छोड़ देना। अब्बास मैदान में जाने लगा। अब जो गाजी के नौकर बैठे हो, इधर अब्बास के घोड़े के कदम चले, इधर हुसैन चले। हुसैन ने जाके अब्बास के न्याम से तलवार खींची, तलवार खींच के अब मैं यहाँ बैठे मोमिनीन के लिए नहीं, पर्दा क़यामत में अपने मौला को जुमला सुनाने लगा हो और मौला से इस जुमले का खराज लेने लगा हो। जनाब मौला हुसैन ने अब्बास के न्याम से तलवार खींची। अब्बास ने कहा मौला तलवार क्यों खींच रही है? हुसैन ने कहा अब्बास बगैर तलवार के जाना है। मौला बगैर तलवार के कैसे जाऊं? मौला मैंने वादा किया मैं जंग नहीं करता, लेकिन मौला मेरे पास मेरी तलवार तो होनी चाहिए। चीखे मार के रोया ज़हरा का गरीब बेटा। रोकेगा हुबास अगर तलवार लेके जाना चाहता ले जा, लेकिन एक बात याद रखना, जो जख्म तूने शामियों को लगाने हैं बदले मेरी ज़ैनब ने देने हैं, बदले मेरी सकीना ने देने हैं। अब्बास मेरी सकीना बड़ी छोटी है, मेरी सकीना से तेरी तलवार के बदले दिए नहीं जा रहे। अब्बास ने तलवार करबला की रेत में फेंकी। रोकेगा मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बदले तेरी बेटियों ने। मौला मुझे क्यों नहीं बताया, बदले तेरी बहनों ने। तलवार करबला की रेत में फेंक दी। अब्बास मक्तल की तरफ चले। शहादत पढ़ने से पहले मैं एक जुमला पढ़ूं, मुझे माफ कर देना। जाओ जाके तारीख से पूछो, गलत पढ़ो, ये है मौला अब्बास का अलम, हाथ है मेरा अब्बास के अलम पे। यकीन कर लेना इस इलाके के सैयद हो गैर सैयद हो, जनाब अब्बास का तरीक कहती कद दराज था, दराज का था। रखो मेरे सर पे कुरान, जाओ करबला में। अब्बास की कब्र छोटी है, अब्बास की कब्र इतनी है जैसे असगर की कब्र होती है, छोटी तुरबत है अब्बास की। वहां पे बैठे उलमा से पूछना कि आखिर अब्बास की कब्र छोटी क्यों है? वो रो के कहते हैं जब हुसैन अब्बास को उठाने मक्तल में पहुंचा, अब्बास की लाश टुकड़ों में बट गई। हुसैन ने उतना अब्बास दफनाया जितना मिल सका। जब अब्बास को लेने के लिए हुसैन मक्तल में पहुंचे हैं, 9
علم کی برآمدی ہو جائے گی. جب سادات کا قافلہ مدینہ رہائی کے اعلان جا رہا تھا، جناب سید الشاہدین سے بی بی زینب نے کہا سجاد مجھے مدینے جانے سے پہلے سکینہ کی قبر پہ لے کے جا. سیداتیاں شام کی قید نبھا کے سکینہ کی قبر پہ آئی. اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے حصے کا. سب سے پہلے بی بی زینب سکینہ کی قبر پہ گری، بعد میں کلثوم سکینہ کی قبر پہ گری، سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں. رو کے کہتی علی کی بیٹیوں ایک مرتبہ سکینہ کی قبر چھوڑو، میں نے تنہائی میں کوئی بات